Bismillahirrahmanirrahim. This is the lecture 25 for the course of Principles of Communication Systems. So previously we covered fundamentals of communication systems. These are different amplitude modulation schemes in the analog domain. And then we saw the effect of noise on these analog communication systems. Afterwards we did the pulse modulation scheme and its variants, pulse code modulation, pulse amplitude modulation, pulse duration modulation, and so on. Then we studied we started digital modulation schemes and studied different basic concepts along with some basic digital modulation schemes, which include ASK, FSK, and PSK. So now in the current lecture, we are going to see a variant of the basic phase shift keying, which is known as quadrature phase shift keying or QPSK. We will see the bandwidth considerations for the said modulation schemes, and we will study the transmitter and receiver structure for this modulation scheme. So let's start by seeing what we did till now and how are these modulation schemes subdivided into different categories. So digital modulation schemes may be divided on the basis of coherent and non-coherent modulation schemes. Again, in the coherent modulation schemes, you have binary, M array, and hybrid kind of modulation schemes, where the binary ones we have already studied them. They are ASK, FSK, and PSK: amplitude shift keying, frequency shift keying, and phase shift keying. Then we studied the concept of M array modulation schemes. So you can apply these M arrays to ASK, FSK, and PSK. Then there are certain hybrid schemes such as M array PK and M array QM. We will study these in the coming lectures and maybe the next lecture. So the counterpart for the coherent ones are the non-coherent ones, which include binary and M array. There are no hybrid schemes for non-coherent detection, non-coherent modulation schemes. So again, the binary ones consist of ASK, FSK, and DPSK, which are differential PSK. We will again study this DPSK in detail in upcoming lectures, maybe the second lecture after this one. Then there are M array counterparts. Again, M array ASK, M array FSK. So these are the non and M array DPSK, which are the non-coherent variants of the M array modulation schemes. So we are going to cover most of these. We have covered certain binary modulation techniques till now. So today we are going to look at the QPSK, the quadrature or quaternary phase shift keying. So let's start today's lecture. So again, the coherent ones are the coherent modulation schemes are the ones where you need to uh, recover the carrier for synchronization purposes. So let's start with quadrature phase shift keying or quaternary phase shift keying. So quaternary phase shift keying or quadrature phase shift keying uh, is an angle modulated constant amplitude digital modulation scheme. QPSK आपके पास M array encoding scheme है जहां आपके पास number of bits जो एक symbol से आप denote करते हैं, they are equal to 2. So 2 bits per symbol, and so the number of symbols are equal to 4. So that's why the name quaternary, that is we have 4 symbols in total which denote 2 bits each. अच्छा, QPSK में आपके पास 4 आउटपुट्स होंगी since you have combination और 2 bits आपके पास आ रहे हैं. So 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So this means एक जो 2 बिट का कम्बिनेशन है, इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 पॉसिबल फेजेस. ठीक है, और वो सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी से होंगे. अब
क्योंकि 4 डिफरेंट फेजेस हैं, सो देयर आर 4 डिफरेंट इनपुट कंडीशंस। अब डिजिटल जो मॉड्यूलेशन है, जो डिजिटल इनपुट है QPSK को, वो बाइनरी होगी, बेस 2 यानी 0 या 1। सो 4 डिफरेंट अगर आपने इनपुट combinations प्रोड्यूस करने हैं, तो जो मॉड्यूलेटर है, it requires more than a single bit. Again, as I told you earlier, we need 2 bits. So with 2 bits, 4 possible conditions आपके पास ये आ गई, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो जो आपके पास QPSK है, इसमें जो बाइनरी इनपुट डेटा वो कंबाइंड किया जाता है इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 बिट्स, ठीक है जी, और इन्हें आप कहते हैं डाई बिट्स। सो अब इन एक जो सिंगल डाई बिट है, वो 4 पॉसिबल आउटपुट फेजेस प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। +45 डिग्रीज, +135 डिग्रीज, -145 और -135। अभी कॉन्स्टलेशन डायग्राम इसकी देखेंगे, इसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसका कॉन्स्टलेशन मैप वगैरह देखेंगे। सो फॉर ईच 2 bit die bit clocked into the modulator, a single output change occurs, ठीक है, यानी 2 बिट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक सिंगल चेंज अकर हो रही होगी। और इन दिस केस आपके पास जो बॉड रेट होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ द इनपुट बिट रेट, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 इनपुट बिट्स एक फेज चेंज प्रोड्यूस करती हैं, एक सिंबल प्रोड्यूस कर रही हैं। सो एक QPSK ट्रांसमीटर कैसा होगा, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे QPSK मॉड्यूलेटर की डायग्राम। आप देखेंगे उसमें कि डाई बिट जो है, ये 2 बिट्स, दे आर क्लॉक्ड इनटू अ बिट स्प्लिटर, ठीक है, यानी एक बिट एक साइड पे चला जाएगा, दूसरा बिट दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब और ये काम हो रहा होगा इनिशियली, ऑब्वियसली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीरियली आ रही होगी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, ठीक है। सो वो पैरेलल में आप उसे दो दो बिट्स करके डिवाइड कर लेंगे। अब एक बिट आपका इन फेज चैनल को जाएगा और दूसरा क्वाड्रेचर फेज चैनल यानी आई और क्यू चैनल्स को जाएंगे, ठीक है। जो आपके पास 1 बिट है, ये मॉड्यूलेट कर रहा होगा कैरियर को इन फेज, और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस ऑसिलेटर, ठीक है, यानी इन फेज होगा विद द रेफरेंस सिग्नल। और क्यू बिट का मतलब हो गया कि ये आपका कैरियर से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा इन क्वाड्रेचर विद रेफरेंस कैरियर। अब जो आपके पास डाई बिट है, ये आई और क्यू चैनल्स में डिवाइड हो रहा है, तो जो आपके पास आगे वाला ऑपरेशन है, अब जब डिवीजन के बाद तो आपके पास एक बिट ऊपर चला गया एक नीचे, तो ये सेम BPS के मॉड्यूलेटर ही बन गया, ठीक है। और QPS के मॉड्यूलेटर एक्चुअली क्या है कि दो BPS के मॉड्यूलेटर्स हैं पैरेलल में। सो लॉजिक 1 के लिए आप +1 वोल्ट यूज कर सकते हैं, लॉजिक 0 के लिए -1 वोल्ट। अब आपके पास जो दो फेजेस होंगे, दे आर पॉसिबल एट द आउटपुट ऑफ द इन फेज बैलेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है, और दो आपके पास क्यू फेज पे होंगे, क्यू बैलेंस मॉड्यूलेटर पे होंगे। जब आपके पास और एट द एंड जब ये दोनों मॉड्यूलेट हो चुके होंगे, ठीक है, तो देन यू जस्ट सम देम अप एंड यू गेट द आउटपुट फॉर QPSK। सो जो आपके पास 4 पॉसिबल फेजर्स होंगे, they can be found by this thing, ठीक है, प्लस साइन एंड प्लस साइन, अगर आपके पास हम प्लस साइन से डिनोट क्या कर रहे हैं, 1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कॉस से हम डिनोट कर रहे हैं 1, सो 1 1 और एंड सो ऑन अदर कॉम्बिनेशंस एज वेल, ठीक है। सो ये आपके पास QPS के मॉड्यूलेटर। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो बाइनरी डेटा आ रहा है आपके पास, बाइनरी डेटा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस, ठीक है, स्ट्रीम आ रही है सीरियल, ये फीड हो रही है यहाँ पे। यहाँ से क्या होगा, लट से ये वाला 1 आप इन फेज को फीड कर देते हैं, क्योंकि आपने डाई बिट्स बनाना है, यानी ये दो दो का कॉम्बिनेशन करना है, दो बिट्स को ये और मैं भी पीछे कोई और बिट हो, मैं भी 1 आ रहा, सो आपने डाई बिट्स बनाना है यहाँ से। सो 1 आपने यहाँ पे दे दिया और 0 में भी यहाँ पे फीड कर दिया इस फर्स्ट 1 वाले का। अब ये यहाँ से जब 1 आया तो ये सेम BPSK वाला काम हो रहा है, इन फेज चैनल है, सो आपके पास लॉजिक 1 या लॉजिक 0 आएगी यहाँ से,
ठीक है, आप एक रेफरेंस कैरियर यहाँ पे जनरेट करवा रहे हैं और साइन आ रहा है सीधा यहाँ पे, साइन के साथ ये चीज आपके पास मॉडुलेट होगी और यू विल गेट आइदर अ प्लस साइन और माइनस साइन ओमेगा सी टी डिपेंडिंग अपॉन कि इट इज लॉजिक 1 या 0. अगेन लॉजिक 1 इज डिनोटेड बाय +1 वोल्ट और लॉजिक 0 इज डिनोटेड बाय -1 वोल्ट. So you will get sine omega plus or minus sine omega ct. You pass it through a band pass filter, same as the BPSK thing. अब पैरेलल में देखते हैं क्या हो रहा है. पैरेलल में लट से यहाँ से आपके पास जीरो आया, सो जीरो मींस कि आपके पास जो वोल्टेज की फॉर्म में आएगा वो -1 वोल्ट आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे विद बैलेंस. ये जो साइन आया यहाँ से, ये 90 डिग्री से आपने जब शिफ्ट किया तो कोसाइन बन गया, तो कोसाइन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा. माइनस साइन तो माइनस कॉस बन गया अगर जीरो आप भेज रहे हैं. सो प्लस या माइनस कोसाइन मींस आइदर 1 या 0 आ रहा है, जो भी आ रहा है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे साइन आ जाएगा. ये आप उसे एक बैंड पास फिल्टर से गुजारते हैं. बैंड पास फिल्टर से गुजारने के बाद ये इन फेज ऊपर वाला हो गया और क्वाड्रेचर क्यू फेज ये नीचे वाली होगी आउटपुट. ठीक है, दिस इज इन फेज और दिस इज क्यू फेज. क्यू फेज क्यों कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का जो फेज शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए हम इसे क्यू फेज कह रहे हैं. ये इन फेज है विद द कैरियर, यहाँ से जो आप रेफरेंस कैरियर जनरेट कर रहे हैं. सो दोनों आपस में सम हुए, लीनियर समर से आपने गुजारा, अगेन बैंड पास फिल्टर से गुजारा और ये अब आपके पास QPS के मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया. So this is what a modulator QPSK modulator looks like. So let's do an example. वो कहता है for a QPSK modulator shown in figure 17, construct the truth table, phasor diagram and constellation diagram. ठीक है जी, तीन चीजें आपने देखनी है. ट्रुथ टेबल देखना है, फेजर डायग्राम और कॉन्स्टलेशन डायग्राम. इससे पहले भी हम ये चीजें कर चुके हैं. सो बाइनरी डेटा इनपुट, for a binary data input of q equals 0 and I equals 0, the two inputs to the I balance in phase balance modulators are -1 sin omega ct and the two inputs to the q balance modulator are -1 and cos omega ct consequently. So the outputs in this case are equal to this one. ठीक है, अगर आप दोनों इन फेज और आउट इन फेज और क्वाड्रेचर फेज पे 0 0 भेजना है तो आपके पास आउटपुट यही आएगी. So in this case the output to the linear summer is what? It is equal to this thing. ठीक है, and you can combine this into this kind of a form. ठीक है, ये आपके पास फाइनल फॉर्म आ गई इसकी. नाउ इसके बाद आपने ये करना है जो बाकी डायबिट्स, ये तो 0 0 के लिए हो गया ना. 0 0 के लिए हमने यहाँ पे कर लिया, 0 0 के लिए हमने ये कर लिया. उसके बाद आपने 0 1 1 0 और 1 1 के लिए खुद यही प्रोसीजर करके और वेरीफाई करना, नेक्स्ट फिगर पे इसकी वैल्यूज लिखी होंगी. ठीक है, ये सारी खुद देख लेनी है. सो नाउ अगेन, सो जो आपका काम है वो ये है कि आपने इन डायबिट्स के लिए आउटपुट देख लेनी है कि क्या होगी. सो नेक्स्ट जो फिगर, जो फेजर्स वगैरह हमने बनाया हुआ नेक्स्ट स्लाइड्स में, उसमें आप देख लेंगे जो एम्पलीट्यूड है QPS के मॉड्यूलेटेड सिंबल्स का वो सेम है सबका, सिर्फ फेज डिफरेंट होगा. ठीक है, 4 पॉसिबल आपके पास आउटपुट्स हैं, सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा. तो जो आपके पास बाइनरी इंफॉर्मेशन, इट मस्ट बी एनकोडेड एंटायरली इन द फेज ऑफ द आउटपुट सिग्नल. फेज शिफ्ट कीइंग है, सो ऑब्वियसली फेज में ही इंफॉर्मेशन आएगी. और इसमें जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, यानी एम्पलीट्यूड आपका हर सिंबल के लिए एक ही है. ठीक है, वो चेंज नहीं है. दिस इज द ओनली थिंग दैट डिस्टिंग्विशेस द phase shift keying, quadrature phase shift keying from quadrature amplitude modulation, which we will study in the next lecture. और एंगुलर सेपरेशन भी आप इसमें देख सकते हैं कि दो एडजेसेंट फेजर्स के दरमियान एंगुलर सेपरेशन QPSK में 90 डिग्री है. ठीक है, सो जो आपके पास QPSK सिग्नल है, इट कैन अंडरगो ऑलमोस्ट अ प्लस और +45 और -45 डिग्री शिफ्ट in phase during transmission and still retain the correct encoded information. यानी ये आगे जाके मैं फेजर डायग्राम में ये चीज आपको बताता हूँ वो क्या कहना चाह रहा है. So this is the
So this is the truth table. ठीक है. If you want quadrature पे 0, input पे 0, you have this phase, and quadrature पे 0 1 0, in phase पे 1, you have minus 45 degrees phase and so on. ठीक है. So ये आपने वेरीफाई कर लेना. ऊपर जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं, वो जो भी आपने 0 0 के लिए काम किया था, सेम उसी तरह से आपने यहाँ पे बाकियों के लिए भी काम करना. You will get the idea. अच्छा, अब वो जो बात कर रहा था, ओके पहले देख लेते हैं फाइनली फेजर डायग्राम इसकी. दिस इज अ फेजर डायग्राम. ठीक है. ये आपके पास बनता है जी साइन ऑफ प्लस 45 डिग्रीज फॉर 1 1, साइन ऑफ माइनस 45 डिग्रीज फॉर 0 1. ठीक है. ये वो जो समर है ना, उसके बाद जो आपके पास लीनियर समेशन जहाँ पे हो रही है, उसके बाद कंबाइन कर सकते हैं कोसाइन और साइन की आइडेंटिटी लगा के इनटू अ सिंगल साइन. सो यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है जी. ये चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं. सो दिस इज अ फेजर डायग्राम. देख लें, गौर से देख लें. ठीक है. फेजर डायग्राम की कैसे उसे लेबल किया जाता है, क्या चीज़ कैसे होती है इसमें, और आपको ये बनाने आनी चाहिए फेजर डायग्राम. सो पिछले लेक्चर्स में हमने ये बीपीएस के वगैरह के लिए ये की हुई है और पीएसके के लिए भी. सो दिस इज द फेजर डायग्राम. ठीक है. और जो लास्ट वन है, दिस इज नोन एज द कॉन्स्टलेशन डायग्राम. अगेन इसमें वो शो कर रहा है 1 1 इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस मच एम्पलीट्यूड एंड दिस फेज. ठीक है. फेज आपका यहाँ पे ये आ गया, ये थीटा, ये फेज है. ठीक है. और फॉर दिस केस ये फेज आ गया, ये अगले के लिए फेज आ गया, और ऐसे कह लें तो -45 यहाँ से, या फिर पूरा घूम के आए तो भी आप कह सकते हैं इसका फेज. सो एनी ये आपके पास कॉन्स्टलेशन डायग्राम है, जिसमें इंस्टेड ऑफ दीज एरोज यू जस्ट शो योर रिप्रेजेंट योर डायबिट्स बाय डॉट इन दिस केस. ठीक है. ये डॉट शो कर रहा है इसकी पोजीशन हर बिट की. अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप चीज़ देखें तो वो जो 45 डिग्रीज वाली कहानी कह रहा था, सो ये जो येलो लाइंस मैंने लगाई यहाँ पे देखें. अब 1 1 लेट से आपके पास नॉइज ऐड अप होती है इस 1 1 में, इस 1 1 वाले सिंबल में, तो मैं भी ये यहाँ पे चला जाता है, ये यहाँ पे चला जाता है. ठीक है. ये यहाँ पे चला जाता है, कहीं पे भी जाएगा. वो ये कह रहा है कि 45 डिग्रीज यानी यहाँ तक अगर वो जाता है, तो आपको फिर भी पता है कि आप विद सर्टेन सर्टेनिटी आप कह सकते हैं ये दिस इज 1 1. ठीक है. सिमिलरली ये 1 1 अगर यहाँ पे चला जाता है, जब ट्रांसमिट आप कर रहे हैं, नॉइज ऐड अप होगी, यहाँ पे अगर ये डॉट चला जाता है, अगेन आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो वो कह रहा है कि बोथ 45 डिग्रीज इन वन डायरेक्शन एंड 45 डिग्रीज इन अदर डायरेक्शन आपके पास मार्जिन है. ठीक है. सो ये अगेन सिमिलरली ये बट यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी आ सकता है इस 90 डिग्रीज में. ठीक है. इस क्वाड्रेंट में आ सकता है, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा तो 90 डिग्री में ये कहीं भी होगा. हमें पता होगा यार नॉइज है, उसकी वजह से ये 10 इट चेंज इट्स लोकेशन. So this is a constellation diagram. You should be able to differentiate between the phasor diagram and the constellation diagram, and should be able to draw this as well. ठीक है, for your final exam. So this is a output phase versus time relationship for a QPSK modulator. You can see कैसे quadrature in phase चीजें shift हुई, and you are going to get different symbols with different phases. ठीक है. मुख्तलिफ phases हैं इनके. ठीक है. एंड 4 डिफरेंट, सो ये डायबिट्स हैं और ये कॉरेस्पॉन्डिंग उनके सिंबल्स हैं डिफरेंट फेजेस के साथ. सो बैंडविड्थ कंसिडरेशंस अब देख लेते हैं QPSK की. कुछ हमने पहले भी बात की थी कि आपके पास जो इनपुट डेटा है वो डिवाइड किया जाता है इनटू 2 चैनल्स. सो जो बिट रेट है I और Q चैनल्स में, वो एक्चुअली क्या होगा, 1/2 होगा ऑफ द ओरिजिनल इनपुट डेटा रेट. ठीक है. FB is your original input data rate. So आपके पास जो I Q channels को जो आप फीड कर रहे हैं, it is going to be half of that. Now this means कि आपके पास जो bit splitter है वो क्या कर रहा होगा, वो स्ट्रेच कर रहा होगा जो बिट्स आप
के ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, आई एंड क्यू बिट्स इनटू ट्वाइस देयर इनपुट बिट लेंथ, ठीक है। सो जो आपके पास, क्योंकि ये इनपुट बिट लेंथ आपके पास इंक्रीज हो रही है यहाँ पे ड्यू टू द reduction of the bit rate that at the in phase and the quadrature phase channel. So consequently जो highest fundamental frequency है जिसकी हम पहले भी बात कर रहे हैं करते हैं data input पे to the I and Q balance modulator, it will be equal to 1/4 of the input data rate, ठीक है। highest fundamental frequency will be equal to 1/4 of the input data rate. Generally ये BPS के वगैरह के केस में हमने देखी it was equal to FB by 2 highest fundamental frequency, but in this case it is going to be for in phase and I और Q channels पे ये 1/4 हो जाएगी to the input data rate, ठीक है। So which is equal to this thing. So as a result जो आपके पास I और Q बैलेंस मॉड्यूलेटर्स हैं, they require a minimum double sided Nyquist bandwidth equal to 1/2 of the incoming bit rate. That is Nyquist जो आपके पास bandwidth है, it is going to be equal to FB by 2. इससे previous BPS के केस में हमने देखा था it was equal to FB. So QPS के केस में हमने क्या किया, bandwidth अपनी compress कर ली, ठीक है। बैंडविड्थ कंप्रेस करने से मतलब क्या होगा कि आपके पास जो मिनिमम बैंडविड्थ है इट इज लेस देन द इनकमिंग बैंड बिट रेट, और क्योंकि आपके पास जो QPS क्या है इसकी आउटपुट का जो सिग्नल है डज नॉट चेंज फेज अंटिल 2 बिट्स डाई बिट, ठीक है। तो जो फास्टेस्ट आउटपुट रेट ऑफ चेंज होगा यानी बॉड रेट होगा इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द इनपुट बिट रेट, ठीक है। जो आपके पास बॉड रेट है इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द इनपुट बिट रेट। इस पे पिछली से पिछली स्लाइड पे भी आई गेस बात हुई थी। सो इन दिस केस आल्सो BPS के केस की तरह जो मिनिमम बैंडविड्थ है और बॉड रेट दे आर इक्वल, ठीक है, इन QPS के, बट दे आर different than that of the BPS. So these are the bandwidth considerations. So यहाँ पे जब आप बाइनरी इनपुट ऐसे फीड करते हैं तो उसका रेट लेट से FB है, ठीक है। लेकिन जब बिट स्प्लिटर की बारी आएगी तो यहाँ पे आप क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, एक बिट इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको उनकी लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो I और Q चैनल्स पे बिट रेट है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू FB by 2, ठीक है जी, और आगे तक ये ऐसे ही रहेगा। सो ये चीज है आपके पास इन टोटल, ठीक है। सो इफ यू कैन पेयर, सो दिस इज इनपुट डेटा टू I एंड Q चैनल्स, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 0 1 1 सो ऑन, ये इनपुट और आउटपुट चैनल्स को आप दे रहे हैं, ठीक है। I चैनल डेटा आपके पास आएगा अब FB by 2 पे, और Q चैनल डेटा भी आएगा FB by 2 पे, ठीक है जी। I चैनल को आप पहले क्या फीड कर रहे हैं, 1 फीड कर रहे हैं, ठीक है। सो 1 की जो ड्यूरेशन होगी अब वो इतनी होगी, और उसके बाद ये Q फेज को कर रहे हैं, ये अगेन इन फेज को कर रहे हैं, इन फेज को अगेन अब 0 आया तो 0 विल बी फॉर डबल द ड्यूरेशन, ठीक है। और सिमिलरली Q फेज के लिए अगेन Q फेज के लिए आपने ये वाला जो 1 था अगेन उसकी ड्यूरेशन भी आपके पास यहाँ से यहाँ तक होगी, इंस्टेड ऑफ 2 बिट्स अब आपके पास क्योंकि एक बिट है, और Q फेज के लिए अगेन एक 1 है तो अगेन यहाँ से इसकी यहाँ तक ड्यूरेशन दोबारा डबल ड्यूरेशन होगी, ठीक है। जो आपके पास फिगर जब आपने ये देखा तो उसमें देखा आपने कि जो वर्स्ट केस इनपुट कंडीशन थी टू द I और Q बैलेंस मॉड्यूलेटर इज एन अल्टरनेटिव 1/0 पैटर्न। जब आपके पास यानी बाइनरी जो है इनपुट डेटा उसमें 1 1 0 0 इस तरह का पैटर्न आए तो वन साइकिल आपके पास क्या होगा। सो इन फेज के लिए पहले आपने ये 1 भेजा फिर 0 भेजा, Q के लिए 1 और 0 सो ऑन, ठीक है, इसी तरह की चीजें। तो 1 1 0 0 अगेन 1 1 0 0 अगर आपके पास सीक्वेंस है तो दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट केस। सो वन साइकिल ऑफ द फास्टेस्ट बाइनरी ट्रांजिशन इन I and Q channel takes the same time as 4 input data bits, and
सो जो हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी इनपुट पे and fast rate of change in the output of the balanced modulator is equal to 1/4 of the binary input bit rate. वही बातें जो हमने इससे पिछली स्लाइड पे की थी. जो आउटपुट है बैलेंस मॉड्यूलेटर इट कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज दिस थिंग. ठीक है, दिस द मैथमेटिकली आपने जो एक्सप्रेस करना वो इस तरह की चीज है वेयर ओमेगा ए टी जो है दिस इज द स्टफ ड्यू टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, omega a is equal to 2 pi fb by 4 and then omega ct is obviously the carrier signal. So omega a is basically the angular frequency due to the modulating signal. So जो output आपके पास आएगी in such a case it is equal just values आपने plug in की input और output की, you are going to get this thing और then sign की identity लगाई तो you are going to get this thing. So जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है अगर यहाँ से आप देखें एक्सटेंड्स फ्रॉम दिस थिंग टू दिस थिंग. सो एफ सी माइनस एफ बी बाय 4 से लेके एफ सी प्लस एफ बी बाय 4 तक है. ठीक है, और जो मिनिमम बैंड विड्थ था इट एफ एन इट कैन बी ऑब्टेन्ड, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ से आपको स्प्रेड नजर आ रहा है इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी का. ठीक है जी, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. सो मिनिमम बैंडविड्थ आपके पास क्या होगी, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है, मिनिमम बैंडविड्थ जो एफएन है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है, जहाँ पे आपने क्या किया सिंपली दोनों मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस लिया. ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेट से यहाँ पे थी, एक यहाँ पे है, दिस इज एफ सी प्लस एफ बी बाई 4, दिस इज एफ सी माइनस एफ बी बाई 4. सो बेसिकली निकोस्ट फ्रीक्वेंसी का इन दोनों का डिफरेंस है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो इट इज इक्वल टू एफ बी बाई 2 जो हम 2 स्लाइड्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, एग्जाम्पल है जी. इसके बाद वो कहता है फॉर अ QPS के मॉड्यूलेटर विद इनपुट डेटा रेट इक्वल टू 10 मेगाबिट्स पर सेकंड एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मेगाहर्ट्ज, डिटरमिन द मिनिमम डबल साइडेड न्यूक्विस्ट बैंडविड्थ. FN यानी आपने कंप्यूट करना है और बॉड रेट कंप्यूट करना है. ठीक है, तो कहता है यू नीड टू कंप्यूट द डबल साइडेड न्यूक्विस्ट बैंडविड्थ, बॉड रेट, और देन अगला सवाल वो करता है आल्सो कंपेयर द रिजल्ट विद दोज अचीव्ड विद BPS के मॉड्यूलेटर. ये जो हमने प्रीवियस वीक जो चीज़ें की थी उनकी बात हो रही है, वहां से निकाल के देख लीजिएगा स्लाइड से एग्जांपल 4 के साथ. वो कहता है यूज द QPS के ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर 17 एज द मॉड्यूलेटर मॉडल. ठीक है, मॉड्यूलेटर जो हमने स्टार्ट में इस लेक्चर की किया है. अच्छा, अब हमें ये पता जो बिट रेट होगा I और Q चैनल्स पे वो क्या होगा जी, हाफ होगा दैट ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसमिशन बिट रेट. ट्रांसमिशन बिट रेट था ये. सो आपके पास जो बिट रेट आया at Q and I channels it is equal to FB by 2 that is 5 megabits per second. और जो हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो हमने कहा वो किस चीज के इक्वल होगी, FB by 4 के, या इन फेज और क्वाड्रेचर फेज पे जो भी आपके पास रेट आ रहा है उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दें. सो इन दिस केस इट इज इक्वल टू FB Q by 2 और FB इन फेज या क्वाड्रेचर फेज पे जो रेट आ रहा है बिट रेट उसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग which is 2.5 megahertz. So now जो आपके पास आउटपुट वेव होगी फ्रॉम ईच बैलेंस मॉड्यूलेटर, अगेन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है, सॉल्व इट आउट, प्लग इन दीज वैल्यूज एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग एट द एंड. ठीक है, अब मिनिमम निक्वेस्ट बैंडविड्थ आप कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसीज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 72.5 और 67.5. जब आपने ये किया यू गॉट 5 मेगाहर्ट्ज. ठीक है जी, ये आ गई आपकी मिनिमम निक्वेस्ट बैंडविड्थ. और जो सिंबल रेट है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा टू द इन दिस QPS के आल्सो जो सिंबल रेट है वो आपका मिनिमम निक्वेस्ट बैंडविड्थ के इक्वल है. ठीक है, सो जो आउटपुट स्पेक्ट्रम होगा वो कुछ इस तरह की चीज होगी. ये आपकी कैरियर की फ्रीक्वेंसी थी, ये एक साइड पे शिफ्ट आया, ये दूसरी साइड पे शिफ्ट आया, ये आपके पास निक्वेस्ट बैंडविड्थ होगी.
ठीक है। और यानी रिजल्टिंगली जो आपका सिग्नल था इट वाज कंप्रेस्ड, क्योंकि ओरिजिनल जो बिट रेट था इट वाज इक्वल टू 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। जो आपके पास, अगर इसी को कंपेयर करें बीपीएस के वाली, अपने पास खोल के देख लें चीजें, तो यू विल सी के जो मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड थी फॉर दिस क्यूपीएस के मॉड्यूलेटर, इट इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ दैट ऑफ बीपीएस के मॉड्यूलेटर। ठीक है। एग्जांपल 4 पैरेलल में खोल के देख लिया है। और अगेन जो बॉड रेट था क्यूपीएस के केस में, इट इज आल्सो वन ऑफ दैट ऑफ द बीपीएस के मॉड्यूलेटर। जो मिनिमम बैंडविड्थ है फॉर क्यूपीएस के सिस्टम, इट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग इनटू इक्वेशन 10। उससे पहले हम एक रिलेशनशिप डेवलप कर चुके थे, बट ये ज़्यादा विजुलाइज करने के लिए ये तरीका, ये जो हमने अभी किया, ये ज़्यादा बेहतर था इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपली प्लगिंग इन अ फार्मूला। ठीक है जी। ओके, रिसीवर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अभी हम नेक्स्ट उस पर देखेंगे इसका जो भी फिगर है फॉर द क्यूपीएस के रिसीवर। ठीक है। अब देखेंगे आई और क्यू जो प्रोडक्ट डिटेक्टर्स हैं, और कैरियर रिकवरी सर्किट होगा इसमें। ठीक है। कोहेरेंट डिटेक्शन स्कीम है। तो जो कैरियर रिकवरी सर्किट है, इट विल प्रोड्यूस ऑब्वियसली एन ओरिजिनल ट्रांसमिटेड कैरियर ऑसिलेटर सिग्नल। Recovered carrier must be frequency and phase, so obviously it needs to be coherent with the transmit reference signal. ठीक है। बाकी डिस्कशन हम आगे जाके देख लेते हैं। सिर्फ एक छोटी सी सपोजिशन है यहाँ पे कि लेट द इनकमिंग क्यूपीएस के सिग्नल बी माइनस साइन एंड प्लस ओमेगा सी टी, यानी -1 और +1, दैट मीन्स 0 and 1. So this is the QPSK receiver. You receive it, you pass it through a band pass filter, you then pass it through a power splitter. पावर स्प्लिटर में अगेन एक इन फेज चला जाएगा, एक आउट क्यू फेज चला जाएगा। हमने अभी बात की थी कि लेट सपोज जो हमें सिग्नल आ रहा है, इट इज माइनस साइन ओमेगा सी टी प्लस कॉस साइन ऑफ ओमेगा सी टी। सो कैरियर आपने रिकवर किया, इधर भी साइन से मल्टीप्लाई किया, इधर कॉस से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट दिस थिंग। ठीक है। और सो यहाँ से आपके पास आ गया +1/2 विच मीन्स लॉजिक 1। ठीक है। और यहाँ से आ गया -1/2 विच मीन्स लॉजिक 0। तो यहाँ से आपके पास 0 और 1 जो आउटपुट, तो यहाँ से नज़र भी आ रहा है 0 है और ये 1 है। ये इसका मैथमेटिकल प्रोसेस है सारा, यहाँ से आप देख के कवर भी कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख लेते हैं। सो जो रिसीवर है क्यूपीएस के सिग्नल का, इसने रिसीव किया जी ये वाला सिग्नल। तो आपने क्या किया, दोनों ये जो इनपुट है इसे फीड कर दिया बोथ टू द इनपुट एंड इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट्स। इन फेज पे कैरियर्स आपने जब इस रिसीव्ड सिग्नल को मल्टीप्लाई करवाया, यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग। ठीक है जी। और इसे जब आपने सॉल्व किया तो यू गॉट दिस काइंड ऑफ अ थिंग, एंड फर्दर यू गॉट दिस काइंड ऑफ थिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मजीद इन्हें ब्रेक डाउन आपने किया। ठीक है। सो यू गॉट these 1 2 3 4 टर्म्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज डबल हो रही हैं, ये तो फिल्टर आउट हो जाएंगे। साइन ऑफ 0 इज 0, पीछे बच गया -1/2। ठीक है। सो आपके पास जो दिस मीन्स -1/2 वोल्ट्स विच एम्प्लाइज लॉजिक 0, नेगेटिव वोल्टेज हम लॉजिक 0 को ले रहे हैं। अगेन आपके करने का काम ये है कि आपने यहाँ पे, हमने लिया जी 0 और 1। आप ये सारी लॉजिक्स के लिए प्रोसीजर करके देखें। ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सब 0 1 के लिए होगा। अब क्वाड्रेचर फेज पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। क्वाड्रेचर फेज पे क्या हो रहा होगा जी, सिग्नल ये रिसीव किया, क्वाड्रेचर फेज पे आपको साइन से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कैरियर को आपने 90 डिग्री फेज शिफ्ट किया था, तो ये कैरियर आ गया क्वाड्रेचर फेज के लिए, आपने मल्टीप्लाई किया, थोड़ा बहुत सॉल्व किया इसे, तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी साइन ये 0 आ गया, ये 2 ओमेगा सी आ गया, यहाँ से ये ऑलरेडी 2 ओमेगा सी है। अगेन ये और ये बैंड पास फिल्टर से बाहर हो जाएंगे क्योंकि डबल फ्रीक्वेंसी है, ये टर्म 0 हो जाएगी, आपके पास पीछे बचा 1/2। तो 1/2 मीन्स लॉजिक 1।
ठीक है, +1/2 है, दिस मीन्स लॉजिक 1। सो जो आपके पास डीमॉड्यूलेटेड इनपुट और क्वाड्रेचर इन फेज और क्वाड्रेचर फेज बिट्स है वो 0 और 1 है रिस्पेक्टिवली। सो this was the lecture ji, today's lecture. So hopefully you understood the basic concepts of QPSK and receiver structure design and transmitter structure design and all the the baud rate, minimum request bandwidth वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि क्या है। So see you in next lecture इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी।